ہاں درد عطا ہو مجھے وہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے اس درس کا عنوان ہے اقامت کی نیت کے صحیح ہونے کی شرط۔ اقامت بات چل رہی تھی پچھلے ہفتہ، قصر کی نماز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ تو اقامت کا مطلب ہوتا ہے کہیں پر ٹھہر جانا، 15 دن یا اس سے زیادہ کی ٹھہرنے کی نیت کر لینا، یہ اقامت ہے۔ اور سفر تو جانتے ہی ہیں، ایک اقامت یہ ہوتی ہے جو نماز سے پہلے کہی جاتی ہے، جسے تکبیر یا اقامت کہتے ہیں۔ تو اس اقامت کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا، لوگوں کو کھڑا کرنا یا کھڑا ہونے کی دعوت دینا نماز کے لیے، وہ اقامت۔ اور دوسرے یہاں قصر کے بیان میں، کیونکہ قصر کی بات چل رہی ہے، جب ہم سفر میں ہیں تو 4 رکعت والی نماز کو جو 2 رکعت پڑھتے ہیں اس کی بات چل رہی تھی۔ تو وہ مسافر ہوتا ہے جو 3 دن 3 رات کے سفر پر نکل جاتا ہے نا، آج کے زمانے کے حساب سے 92 کلومیٹر کا اس کا فاصلہ ملتا ہے، یہ باتیں بتائی جا چکی ہیں۔ تو جو سفر میں جائے اور 15 دن سے زیادہ کہیں پر کسی جگہ جانے کی نیت کر لے، ٹھہرنے کی نیت کر لے، تو وہ مقیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اقامت، تو اس کے اقامت کی نیت کی صحیح ہونے کی 6 شرطیں، اگر یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی تب کسی کا مقیم ہونے کی اقامت کی نیت کر لینا یہ درست ہوگا، یعنی 15 دن ٹھہرنے کی نیت اس کا کرنا درست ہوگا، اور وہ مقیم ہوگا اور وہ 4 رکعت کی نماز پڑھ سکے گا جب یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی تب۔ پہلی شرط یہ ہے کہ چلنا ترک کر دے، چلنا چھوڑ دے۔ آدمی جب تک چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تب تک اسے یہ اختیار نہیں ہے یا اس کی نیت درست نہیں ہوگی، مانی نہیں جائے گی کہ وہ نیت کر لے کہ ہم جو ہے 15 دن ٹھہریں گے۔ جب تک چل رہا ہے تب تک اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اسے قصر کرنا ہوگا۔ اس نے اگر 92 کلومیٹر دور تک جانے کا ارادہ کر لیا ہے، اگر بس اپنی آبادی سے نکل جائے تو جب تک کسی جگہ پر جا کے ٹھہر نہ جائے تب تک چلنا چھوڑ نہ دے، تب تک اس کی اقامت کی نیت کا کوئی مطلب نہیں ہے، اسے سفر میں مانا جائے گا، اور 4 رکعت والی نماز کو، فرض نماز کو 2 رکعت ہی پڑھنی ہوگی۔ سنت میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر قرار ہے، اطمینان ہے، کوئی ہڑبڑی نہیں ہے تو سنت واجبات پوری پڑھیں گی۔ یہ پہلی شرط ہوئی کہ چلنا چھوڑ دے تب وہ نیت کر سکتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جگہ ٹھہرنے کے قابل ہو، اقامت کے قابل ہو، جیسے کوئی جنگل میں جا کر جہاں کوئی رہتا نہ ہو، آبادی نہ ہو، وہاں وہ نیت کر لے، اس کی عادت نہیں ہے رہنے کی، ایسے ہی اتفاقاً پہنچ گیا، وہ یوں ہی نیت کر لے کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھنے کی نیت سے جو ہے خالی اقامت کی نیت کر لے کہ نہیں ہم 15 دن یہاں رہیں گے، تو اس کی بھی نیت سے جو ہے اس کی بھی نیت درست نہیں مانی جائے گی۔ ہاں اگر ایسا شخص ہے جو جنگل ہی میں جس کا اکثر و بیشتر رہنا سہنا ہوتا ہے، یا ٹاپو ہے، کوئی جزیرہ ہے، کہیں ہے نا، تو جہاں پر وہ کبھی گیا نہیں، اس سے اتنا برداشت نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایسی جگہ پر اس کے 15 دن کی نیت سے بھی وہ مقیم نہیں ہوگا، اس کی نیت درست نہیں ہوگی۔ ہاں اگر جو رہنے کا عادی ہے، اکثر و بیشتر اس کا کام پڑتا رہتا ہے، تو وہ اگر وہاں جا کر 15 دن کی نیت کر لیتے ہیں کہ 15 دن ہمیں یہاں رہنا ہے، تو جو ہے وہ 4 رکعت والی نماز کو بھی 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، وہ مقیم ہو جائیں گے، اقامت کی نیت سے ہو جائے گی۔ یہ دوسری شرط تھی۔ پہلی شرط چلنا چھوڑ دے، دوسری چیز کہ وہ جگہ اقامت کی، ٹھہرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ کم از کم 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو۔ 15 دن سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تب جو ہے وہ مقیم نہیں ہوگا۔ 14 دن اگر رہنے کی نیت ہے تو پھر وہاں پر چاہے کیسی بھی جگہ ہو، اپنے گھر کے علاوہ کوئی بھی جگہ ہو، تو وہاں پر 14 دن کی نیت کرنے سے جو ہے وہ مسافر ہی رہے گا۔ 15 دن جو ہی ہوگا تب وہ مقیم ہو جائے گا، تب وہ 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ یہ تیسری شرط تھی، 15 دن کی نیت۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 15 دن رہنے کی جو نیت، اقامت کی جو نیت ہے، وہ ایک ہی جگہ رہنے کی، وہ ایک ہی جگہ 15 دن رہنے کی نیت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ 10 دن یہاں رہنا ہے اور 10 دن حاجی پور میں رہنا ہے،
तो 10 दिन यहाँ रहना है, 5 दिन हाजीपुर में रहना है, तो इससे भी वो मुकीम नहीं होगा। अलग अलग जगहों में जो है वो रहने से उसकी इकामत की नीयत जो है दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, इसमें ज़रा तफसील है कि अगर तो ऐसा हो, इसमें अगर ये नीयत हो कि नहीं रात में यहाँ रहेंगे, दिन में वहाँ रहेंगे, अगर इस तरह से कोई तरतीब कोई मुतय्यन कर दे नहीं, तो अगर कि दिन में हमें यहाँ रहना है बरौल में और रात में हमें रहना है हाजीपुर में, तो अब इसमें मसला ज़रा बदलेगा। वो ये है कि अगर दिन में यहाँ रहने की नीयत है और पहले हम बरौल ही आ गए दिन में रहने के लिए, दिन में आए हैं बरौल, पहला दिन हमारा अगर बरौल में है, दिन में हम ठहरे हैं, तब जो है हमारे इकामत की नीयत दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन अगर हम रात को पहुँचे हाजीपुर और रात वहाँ से शुरू किए, तब जो है हमारी इकामत की नीयत दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि शरई एतबार से रात जो है रात से ही दिन की शुरुआत हो जाती है। चूँकि जब दिन को से शुरू करेंगे तो गोया कि उस रात में, उस दिन में से रात चूँकि कट चुकी है तो वो हिस्सा कम हो जाता है। तो चौथी शर्त यही है कि एक जगह में जो है रहने की नीयत हो, या एक जगह के आसपास में जा सकता है, वहाँ से रह के कहीं भी जा सकता है, वो एक अलग सी बात है। नीयत ना हो कि ये यहाँ भी रहना है, 10 दिन यहाँ रहना है, 5 दिन वहाँ रहना है, तो इस तरह से करके उसका 15 दिन नहीं माना जाएगा, वो भी फिर भी वो मुसाफिर ही रहेगा। और तीसरी शर्त, 5वीं शर्त ये है कि वो नीयत करने वाला, वो जो सफ़र में था नीयत करने वाला किसी के ताबे ना हो, किसी के ताबे ना हो, यानी वो ऐसा ना हो कि उसकी नीयत जो है किसी और के ताबे हो। जैसे इसकी मिसाल ले लीजिए कि कोई स्टूडेंट, कोई शागिर्द, कोई तालिब इल्म पढ़ता है और अपने उस्ताद के यहाँ से खाना खाता है, तो अब वो उस्ताद की मर्ज़ी के ताबे है, उस्ताद जो नीयत करेगा वही उसकी नीयत होगी। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नीयत कर ले कि हमें 15 दिन यहाँ रहना है, तो अपनी मर्ज़ी से उसकी नीयत नहीं, वो उस्ताद की मर्ज़ी के ताबे है। या इसी तरह वो औरत कसर का मसला औरतों के लिए भी है, ये नहीं कि सिर्फ मर्द है, औरत भी अगर 92 किलोमीटर से ऊपर जाती है, उनका सफ़र पूरा होता है, तो औरतें भी 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ेंगी। तो वो औरत के जिसका महर दैन महर रखा जाता है, उसमें दैन महर होता है, महर मुअज्जल होता है, महर मुतलक होता है और महर मुअज्जल होता है। 3 तरह की महर होती है। ज़िम्नन बात आ गई तो उसको ज़रा वाज़ेह कर दूँ। महर मुतलक वो महर होता है कि जैसे आमतौर से होता है कि कुछ भी महर रख दिया गया, मगर उसकी अदायगी का कोई वक्त मुतय्यन नहीं होता कि कब उसे देना है। ये हुआ महर मुतलक आजकल के दौर में जो होता है, कोई टेंशन नहीं, मतलब उसको कोई फिक्स मुद्दत नहीं होती है, ज़िंदगी भर जब चाहे अदा करें। और महर मुअज्जल होता है, हमज़ा से और लिखा होता है, उसके हमज़ा होता है महर मुअज्जल। मुअज्जल मतलब कि एक टाइम महर के साथ साथ जो है टाइम फिक्स होता है, 5 साल का फला तारीख तक हमको जो है दे देना है, ये टाइम फिक्स है, ये महर मुअज्जल। और तीसरा जो है महर मुअज्जल, इसकी बात चल रही है कि उसमें जो है अगर ये तय करा कि महर मुअज्जल, तो जब तक जो है महर अदा नहीं करेगा तब तक जो है वो मियाँ बीवी की तरह करीब नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर इजाज़त दे देती है तो करीब हो सकती है, लेकिन ऐसी औरत भाई महर मुअज्जल जिस औरत का तय हुआ हो, महर मुअज्जल हुआ हो, तो शौहर को अपनी तरफ से कोई इख्तियार नहीं होता है जब तक उसको खुद इजाज़त न दे दे। तो ऐसी बीवी जो है आज़ाद होती है अपने लिए, ऐसी बीवी अपने लिए जो है आज़ाद होती है, तो उसका सफ़र जो है वो खुद के लिए वो मुख्तार है कि वो चाहे कसर की नीयत खुद कर ले। लेकिन इसके अलावा जो औरतें होंगी जिसका महर मुअज्जल होगा, जिसकी मियाद मुतय्यन होगी कि फ़लाँ तक अदा करना है, तो उस मुद्दत में वो खुद वो शौहर के ताबे होती है, या जिसके महर की कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं होती, जैसे आजकल निकाह में होता है, तो ऐसी औरत भी अपने शौहर के ताबे होती है। तो वो अपने अलग से वो खुद से नियत नहीं कर सकती है, वो शौहर के ताबे है। अगर शौहर के साथ वो सफ़र में है तो वो शौहरी के ताबे है। इसी तरह ग़ुलाम जो होते हैं पहले ज़माने के, वो ग़ुलाम भी जो है अपने आकाई के ताबे होते थे। आप तो ग़ुलाम है नहीं, तो इसका मसला भी कोई ज़रूरत नहीं है बहुत तफसील से बयान करने की, या वैसे में भी तफसील होती कुछ। तो इसी तरह ग़ुलाम या लश्करी वगैरह जो है, तो लश्करियों को भी अपनी तरफ से नियत करने की इजाज़त नहीं है। जो है काफ़िला होगा, है ना, वो जो उसका जो प्रोग्राम होगा उसी एतबार से उसको चलना होगा। या
इस तरह से जो बैतुल माल से जो मान लेते हैं, आज भी बैतुल माल का नज़्म नहीं है तो जो किसी का ताबे ना हो, तो ये भी ज़रूरत है इकामत की नीयत के सही होने के लिए कि वो किसी का ताबे ना हो। ये 5वीं शर्त। और 6ठी शर्त ये है कि उसकी हालत उसके इरादे के मुनाफी ना हो, है ना। इकामत की नीयत तभी सही होगी, जैसे पिछली बार बताया था कि इरादा उसका है 15 दिन रहेंगे, इरादा उसका है कि यहाँ 15 दिन रहना है, मगर सूरत हाल ऐसी नहीं कि वो 15 दिन तक रह सके। मतलब ऐसी पोजीशन है कि वो कभी भी जा सकता है, उसे खुद भी पता नहीं है कि हो सकता है कल ही चले जाए, हो सकता है कल ही परसों चले जाए। ये मतलब इस शक में है तो उसको खुद ये फिक्स नहीं है, तो उसके भी 15 दिन की नियत करने से वो नहीं होगा, है ना। किसी को काम है कलकत्ता में तो 12 दिन का, फिर भी वो जो है नहीं कि 15 दिन हो सकता हो जाए, ये सिर्फ हो सकने से कि मुमकिन है ऐसा हो जाए, तो इससे नहीं हो सकता, बल्कि उसका इरादा जो है, उसके जो हालत है, उस हालत के अतबार से 12 दिन में उसको यहाँ से चले जाना है। इरादा जो है खाली उसका इरादा करने से नहीं, उसकी हालत भी ऐसी होनी चाहिए। या कोई हज करने गया है तो वो ये सोच ले कि हमें यहाँ पर जो है हम कसर करेंगे, हमको यहाँ इतना दिन लाना नहीं, उसमें बीच में शेड्यूल है, कहाँ जाना है, मदीना जाना है, वो 250 किलोमीटर दूर है, तो इससे भी जो है वो अगर वो नियत कर ले तो भी जो है उसकी नियत सही नहीं होगी। इकामत की नियत उससे जो है तस्हीह करना होगा, उसे मुसाफिर ही माना जाएगा, क्योंकि वो उसकी हालत जो है अगरचे उसने इरादा कर लिया, मगर उसकी आम हालत ऐसी है कि उसे 15 दिन के अंदर ही यहाँ से कूच कर जाना है, तो उसके इरादे का कोई एतबार नहीं है। तो इकामत की नियत के सही होने की ये 6 शर्तें थी जो आज बयान की गई। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे को